This meeting is being recorded. Okay. I'll go ahead and quickly recap whatever we have learned last week. So we have seen some simple data ecosystem of an e-commerce company. Like they have OLTP database, which is connected to an app, and OLAP database, which is designed in denormalization techniques, and also it is designed in dimensional model techniques. Okay. So last week we discussed about like you're going to do some of the whiteboarding for relational data modeling. So if anyone of you have done, you can showcase it. लोग बता सकते हैं, अगर करें हैं तो. याद भाई मैं वो वाइट बोर्डिंग नहीं सका मैं जो बोले आप जो हाँ. मैं सीखा था वो है ना एक मैं लिंक्डइन पोस्ट ना रख लेके लिंक्डइन में अपडेट किया था। अच्छा. हाँ हाँ, बताइए. अगर है बता तो देता हूँ। बताइए. तो जिस तरह हम लोग एक्सेल पे करें ना, सेम आप भी हाँ, वैसी कुछ एक डोमेन पकड़ के उसको टेबल्स, इंडिविजुअली टेबल्स बना करके, अगर कुछ नॉर्मलाइजेशन कर सकते टेबल्स में, तो अगर आप दिख रही अपॉर्चुनिटी कर सकते, तो उसको करके बड़े लिस्ट ऑफ टेबल्स बना करके रिलेशनशिप्स डिफाइन करना, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऐसा. बस उतना ही. ओके मैं ऐसा नहीं किया था। मैं वो जो किया था मैं रिलेशन डेटा मॉडल और डायमेंशन डेटा मॉडल वो दोनों बीच में फर्क क्या रहता है, डिफरेंसेस क्या रहते हैं जो बोले थे ना आप, वो मैं रिकैप करके मैं पोस्ट डाल दिया था लिंक्डइन पे। ओ, ठीक है. अब अब लास्ट वीक भाई। हम लोग देखे थे रिलेशनल डेटा मॉडलिंग. अब ठीक है, तो यूसुफ, फिरदौस, आप लोगों के पास कुछ है ऐसा दिखाने के लिए, जो टास्क हम लोग बोले थे करने के लिए? शायद भाई मेरे को भी टाइम नहीं मिला लाइक लास्ट वीक टू बी ऑनेस्ट लाइक आई वाज इन हॉस्पिटल विथ ठीक माय है. वाइफ एंड ऑल। ओके, चल कोई बात नहीं. विल मूव फॉरवर्ड. विल क्विकली मूव या फॉरवर्ड. Okay. So last week I have shown you how to design a relational data model for an e-commerce app. So now, so I have took uh, proper field names with that same example what we have seen last time. So this is kind of users table, users. This is categories table, products table, vendors table, orders table, order item. So all these combined, it's called relational data model because it is designed in such a way that data will not repeat for each table. Each table will have a unique identifier, that is primary key, and they will also have a foreign key. So the relationships between both of them uh, will be in such a way that they do not uh, repeat the data. So we have seen the concept of normalization. So I hope you all remember this. Okay. So Yeah. now I will go to the diagram. So last week we have seen one simple diagram. Okay, this is a data ecosystem of
a company, and here we saw one is OLTP, transactional data source, day-to-day operations happens in this database, और एक है OLAP या डेटा वेयरहाउस। ये याद है ना आप लोगों को? है शायद भाई। The OLTP, screen got green, Shakti. हाँ वो मिस हो गया मेरे से। OLAP, No. Yes. OLTP, ठीक है। सो ये इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी देते हैं। We'll call it as operational database because it's directly connected to the front end application, ये app or website, or app. So it's connected, this database is connected to the website. So now the schema that I have shown you, this schema, this is the relational data model because these tables are normalized. So these tables are designed in such a way that data will not repeat here. So you remember, I think last time we saw an example of data repetitions of all those rows if we do not design it properly. So here these tables are designed properly. So here you can see data is not repeated. So every category has category ID and different names, even products, vendors. So this will come here, relational data model. Relational data model. Okay. ओके, सो फार गुड। मतलब आप लोग मेरे साथ हैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ? अच्छा शायद भाई, गुड, सब ठीक है। यूसुफ आलम, फिरदौस आलम। जी जी शायद भाई। हाँ ठीक है। Uh, So you're seeing a link here, right? Website is connected to relational data model. Then how do we design OLAP? What is that system that designs OLAP? So यहाँ पर ये बीच में आता है ETL system. ETL system comes in between both OLTP system and OLAP system. So what ETL will do, it will pick up all the schema from relational database, relational data model, sorry. Relational data model is logical, okay? Relational database is physical. So it's relational data model is just a concept. And this ETL system, we write multiple ETLs here, like ETL1, ETL workflows, multiple workflows we will write here. So what these workflows will do, these workflows will write into data warehouse. Okay. So this data warehouse will design in such a way that there is one big table which we will call as fact table. Then all other tables are connected to the fact table.
Okay, so okay, so between OLTP and OLAP systems, we'll have an ETL system that will connect to relational data model and pick up all those schema, all those values, field names, and then we will pass it on to the ETL system, and then that ETL system will write the ETLs, multiple ETLs that will each of them write to one table. So these boxes that you see, each of these boxes is one table. So in the middle, you have this fact table, right? So this fact table, we'll see how to design these all, but I'm giving a high level overview, like how this happens. Okay, so far with me, if you have not understood, कुछ questions है तो आप quickly ले लेंगे. भाई वो लैब में इतने टेबल्स है ना बोल के हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं? तो Okay, उसे क्या लिमिट आता है क्या उसमें? ओके, हम देखेंगे कैसा डिजाइन कर रहे हैं वो देखेंगे हम. बट आप लोग ये समझ गए कि लिंकिंग पॉइंट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. रिलेशनल डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस को तो डेटा यहाँ से आ रहा, वेबसाइट से आ रहा, ठीक है. एंड डेटा वेयरहाउस में से डेटा कहाँ से आ रहा? So here ETL the linking point is ETL system. हाँ, ईटीएल सिस्टम से आ रहा. ईटीएल सिस्टम सोर्स कहाँ से कर रहा है? डेटा सोर्स कौन सा सोर्स पिक कर रहा हो? रिलेशन डेटा मॉडल. Relational कौन सा? रिलेशनल relational database. हाँ, करेक्ट. अभी समझ में आ गया ना आपको लिंक ये? समझ में आया तो शायद भाई. दोनों सेपरेट थे, अभी दोनों सेपरेट थे. इसका तो पता चल गया हमको, इसका डेटा यहाँ से आ रहा है. वो लैब का डेटा रिलेशनल डेटा मॉडल, सो इसको बोलते हैं सोर्स सिस्टम. सो जनरली रिलेशनल डेटाबेस जो डे टू डे ऑपरेशंस करता ना, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स सिस्टम और सोर्स ऑफ ट्रुथ. और ओलैप सिस्टम को बोलते हैं डेटा वेयरहाउस. ठीक है, ओलैप सिस्टम को बोलते हैं डेटा वेयरहाउस. नो, आप लोगों को लिंकिंग पॉइंट तो समझ में आ गया, ठीक है. अभी ये जो डायग्राम दिख रहा, ये डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा? मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा? स्नोफ्लेक. ये जो डायग्राम है ओलैप स्टार. ओलैप बॉक्स में कैसा लग रहा? स्टार. स्टार, करेक्ट. सो एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन गया. क्यों बोल तो मिडिल टेबल जो है ना, ये मिडिल टेबल फैक्ट टेबल, उसको सारे टेबल्स कनेक्ट हो रहे हैं, सब टेबल्स कनेक्ट हो रहे हैं, फॉर्मिंग लाइक ए स्टार स्ट्रक्चर. ठीक है, सो इसको बोलते हैं स्टार स्कीमा. स्टार स्कीमा. सो हम लोग जब बात कर रहे थे ना डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग बनाने के लिए, डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग, वो यूज वो यूज करता स्टार स्कीमा. स्टार स्कीमा कॉन्सेप्ट यूज करके डायमेंशनल डेटा मॉडल बनाते. अभी ये सब हम लोग टेबल्स बना करके ईटीएल्स को ऑटोमेट कर देते. मतलब जो डेटा सोर्स से आते जा रहा कंटिन्यूअसली, तो मुझे भी कंटिन्यूअसली डेटा वेयर हाउस में लोड करते रहना है.
तो कैसा करेंगे, बीच में जो ETL सिस्टम है ना, तो ETL सिस्टम ये ऑटोमेशन कर रहा के सोर्स में से कंटिन्यूअसली जो डेटा आ रहा मुझे, वो डेटा मैं पिक करूंगा और उसको ट्रांसफॉर्म एंड लोड इट इनटू डेटा वेयरहाउस। सो अभी हम लोग क्विकली एक ओवरव्यू ETL सिस्टम के बारे में देख लेंगे बिफोर वी गो इनटू डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग। ओके, सो ETL सिस्टम है क्या? What is ETL system? What does it do? It is Can the anyone link between linking between? relational. It is the link between relational database to dimensional database, Okay, or correct. we can say warehouse database. Correct. Right. Exactly. And this is one of the part. But generally, what it will do, like if what is the full form of ETL and what it will do? Extracting, transforming, and loading the data. Okay, yeah, exactly correct. So it will, the process wise, it's extracting, then transforming and loading. Okay. So it's extracting from where in this scenario, in our case? OLAP, O- OL, Yes, extracting extracting from where? from the relation data model. Right. Extracting from source system, that is relational data model. Relation. Source. Okay. And it will load into data warehouse. Dimensional. So which in terms is designed in dimensional data model. Okay. So now what is transformations? Transformations are like business logic. So यहाँ पर transformations जो है ना, बहुत सारे चीजें आएंगे. But quickly मैं simple example दूंगा transformations में. For example, आपका source system में कुछ fields में null values है, एक टेबल के फील्ड में null value है, या उसका डेटा टाइप अलग है. बेसिकली हम कह सकते हैं डेटा क्लीनिंग लाइक. हाँ, सो बिजनेस रूल्स रहते कुछ कि डेटा वेयरहाउसिंग में डेटा लोड करने से पहले कुछ रूल्स डिफाइन रहते हैं. वो रूल्स को फॉलो करके हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस ETL टूल में लिखते हैं. ओके, सो जब डेटा एक्सट्रैक्ट करते ना, एक बिग सीक्वेंस स्टेटमेंट लिखते हैं. सीक्वेंस स्टेटमेंट आता है. We'll write a SQL statement with lots of joins. ये इतने सारे joins क्यों हैं? Because we have this schema, right? ये e-commerce schema है ना. हम users को, categories को, products को, vendors को, orders, order items, payments, shipping, reviews,
सो इतने सारे टेबल्स मुझे कंबाइन करना है, एक साथ लेना है, तो मुझे ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना। सो दैट्स वेयर एक्सट्रैक्शन सीक्वल में एक बड़ा क्वेरी रहता, वो क्वेरी में सारे जॉइंस रहते। तो जॉइंस हमको इस तरह लिखना पड़ेगा कि पूरा डेटा एक जगह कलेक्ट कर लिया। देन ट्रांसफॉर्मेशंस में आएगा, अगर कुछ मिसिंग वैल्यू है, नल वैल्यू है, उसको कैसा हैंडल करना। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स में भी सोर्स में डिफरेंट रहेंगे कुछ। सोर्स सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स अलग रहते हैं, टारगेट सिस्टम अपना सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स अलग रहते हैं। सो जनरली डेटा वेयरहाउस में हम लोग देखते कि ऑल measurable values should be in number and all non-measurable values categories should be in uh, varchar और string बोल सकते हैं आप। सो इस तरह ट्रांसफॉर्मेशंस में ये सब डिफाइन करते हैं हम लोग, मतलब डेटा टाइप्स चेक करते हैं, मैपिंग करना ईच फील्ड, लाइक ऑर्डर टेबल का टेबल प्रॉपर मैपिंग होना कि उसका डेटा सही से डेटा वेयरहाउस में जाके लोड हो जाना। सो ट्रांसफॉर्मेशंस में सब बिजनेस रूल्स रहते हैं, ठीक है। तो लेट्स, ओके, सो We बिफोर आई can जंप also say बैक, this. विल टेक सम क्वेश्चंस। ईटीएल टूल के बारे में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है ईटीएल के बारे में, तो विल टेक इट। ईटीएल का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्लियर है शायद भाई। ओके, यूसुफ एंड फिरदौस, आप लोगों को भी क्लियर है ना? Yeah. कुछ क्वेश्चंस है इसमें? हाँ, ये ईटीएल कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करें सो। नहीं शायद भाई, मुझे तो नहीं, ओके, इसमें तो नहीं है. So basically the transformation is kind of like the expectation from business or the rules. हाँ, so before loading into data warehouse we'll do transformations like calculations create करना है और डेटा टाइप्स चेकिंग करना है। दो टेबल्स जब ज्वाइन कर रहे हो उसमें कुछ इश्यू आ रहा तो डेटा टाइप कन्वर्जन करना है, मतलब वेरी लो लेवल थिंग्स विल डू इन ट्रांसफॉर्मेशंस, जो मतलब कोडिंग लेवल पे होता है यूजिंग बिजनेस रूल्स। सो बिजनेस रूल्स डॉक्यूमेंट में डिफाइन रहता, वो लेकर के हम लोग कोडिंग में उसको चेंजेस करना था सीक्वल कोडिंग में, या जो भी ईटीएल टूल यूज कर रहे वो टूल के अंदर इस तरह डिफाइन करना है कि प्रॉपर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। फॉर एग्जांपल अपना एक एग्जांपल देता हूँ मैं, रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग डेट डेट फॉलो कर रहे, डी डी एम एम वाई वाई देन टाइम स्टैम्प, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग वन ऑफ द फील्ड में ये फॉलो कर रहे कि ये डेट टाइम ये फॉर्मेट में है। बट व्हेन इट कम्स टू ओलैप सिस्टम हम लोग इस तरह डिफाइन करें कि मुझे टाइम स्टैम्प तो नहीं चाहिए और डेट फॉर्मेट ऐसा नहीं चाहिए, मुझे डेट फॉर्मेट आई वांट दिस इन दिस फॉर्मेट, वाई वाई एम एम डी डी। सो नाउ दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसफॉर्मेशन। सो द लॉजिक हम लोग ऐसा लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस में कि डेटा इस तरह कन्वर्ट हो जाना एंड यही लोड होना डेटा वेयरहाउस में, ये रिलेशनल डेटा मॉडल में ऐसे ही रहेगा, यही फॉर्मेट रहेगा। तो दिस इज वन योर एग्जांपल। अब तक क्लियर है ना जो भी डिस्कस करें हम लोग? जी.
ओके, ठीक है, मैं I'll come back to dimensional data modeling. Okay, so there is one system OLTP and there is one system OLAP, and in the middle we have an ETL system. So the ETL system will pick the data from the source system and transform it and load it into the OLAP system, that is data warehouse. So now data warehouse will design all our tables in such a way that it forms a star-like structure. So we will have one big table in the middle, that is we call it as fact table. Okay, and the other tables that are joining to the fact table are called dimension tables. These are called dimension tables. This is one dimension. So this is dimension users. This is, we'll name it in this way also. We'll name these tables in this way, like prefix with dim underscore products, dim underscore categories, and so on. All these tables are dimension underscore, and this table is fact table, in the table that in the middle. So fact table is designed in different way. Dimension tables are defined in different way. So what fact table contains? It contains all the quantitative data. जैसा जो डेटा जिसपे हम लोग कैलकुलेटिव, जैसा कि मेजर वैल्यूज बोलते हैं ना, जिसको हम ऐड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, only all those values will contain in fact table. Dimension tables contains categorical values, so it gives more context to fact table. For example, fact tables में आपके सारे numbers ही रहेंगे, but numbers को आप डिस्क्राइब करना चाहे इन डिटेल, कैसा? आप खाली नंबर्स को देख के कुछ बोल सकते क्या? नहीं, उसका नंबर्स का कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए. सो मैं फैक्ट टेबल में यूजर आईडीज है, यूजर आईडीज को काउंट कर लिया, ठीक है, यूजर आईडीज मेरे को आ गए, लेकिन मुझे उसका और डिटेल चाहिए. तो कौन सा यूजर का कितना लॉगिन फ्रीक्वेंसी है, तो उसका डिटेल मुझे इससे ज्वाइन करना पड़ेगा यूजर टेबल से. So let's see an example. Maybe you will get more clarity. Okay. I will go to my Excel sheet. So this Excel sheet, e-commerce schema, this is relational data model. Okay. So, and this Excel sheet, the second one is dimensional data modeling. Okay. So in relational data modeling, we have all these tables. So these are application tables, users, categories, products. Can I expand a little bit? You're able to see it, right? Yes, yes. इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर. Okay, so these are all application tables directly connected to app or website, vendors, orders, order items. ठीक है. So overall, these are all the tables. Okay. Now, in dimensional data modeling, we design two types of tables. One is fact table, one is dimension. Period. That's it. No other table. Fact, dimension. So you should remember, in dimensional data modeling, we'll have two types of tables, fact tables and dimension tables. So now what we are going to do is, we'll take IDs of each of these tables from relational data model. Okay. We'll take user ID, category ID,
product ID. So whatever is the measurable value, we'll take it. Order ID, order item ID, payment ID. So in payment, if I have anything related to price, okay, in order item ID, I have price. Okay, we'll take price also because this is a measure value. Shipping ID and review ID and inventory item ID. And one more thing, quantity is also measurable value. We'll add quantity. Okay. So now all these if we put together here, this is our fact table. Okay. So that's fact table contains user ID, category ID, product ID, order ID. So now what happens is, see here you can see the data will repeat here. So this is denormalization. So some of the data will repeat. Order ID, product ID, user ID, quantity. So now again what we will do, we'll define so we designed a fact table डिजाइन कर लो इसका भी एक हम लोग प्राइमरी की देंगे यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रोस और एक की वैल्यू देंगे नॉट रिक्वायर्ड दैट प्राइमरी की डिफाइन करना जरूरी नहीं है डेटा वेयर हाउसिंग में जस्ट एक की वैल्यू देंगे एक आइडेंटिफायर या ऑटो इंक्रीमेंट that will uniquely define each row. That's it. So primary key देना जरूरी नहीं है, just a key. ठीक है? So I'll stop now. We'll take any questions related to fact table. कुछ समझ में आया या कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ समझ में नहीं आया? समझ में आया तो आप लोग बता सकते हैं मुझे क्या समझ में आया, अगर नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया, जस्ट अगर बोले तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा. तो ये अभी तक तो basically क्लियर. Okay, go ahead Firdaus. नो अभी तक क्लियर है पूरा. योर टेबल के क्लियर है? डिफरेंसेस ओके फैक्ट और ठीक है. डायमेंशन टेबल में. ओके, आपको क्लियर है? क्या एक बार आप रिपीट कर सकते हैं अब तक क्या समझे आप, ताकि मैं भी एसेस कर लूं कि क्लियर है नहीं. फैक्ट टेबल्स कैरीज लाइक क्वांटिटेटिव डेटा जिसके हम ऊपर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, लाइक एवरेजेस हो या किसी नंबर्स का मीन और कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. और डायमेंशनल टेबल्स में कैटेगरिकल डेटा कंटेन करता है. ओके ठीक. ओके यूसुफ. हाँ तो आई थिंक मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया व्हाट आलम भाई बोले. तो द फैक्ट टेबल इज काइंड ऑफ लाइक दिस सोर्स की लाइक व्हाट डू यू कॉल सबका एक जगह है द इंफॉर्मेशन. इट्स काइंड ऑफ लाइक एक ही टेबल में वी हैव एडेड एवरीथिंग. यस. Sad bhai, can we have a multiple fact table? Yeah, we can have multiple fact table. I will come to that. Okay Yusuf, you continue please. या सो ये एक मेन टेबल है where we have added all the separate tables. उसका एक मेन टेबल बना है, जैसा रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग एक टेबल से मल्टीपल टेबल्स बनाए थे, वहां पर से वी हैव टेकन मल्टीपल टेबल से एक टेबल बनाए हम लोग.
and we हाँ, have kept correct. one primary key. Right, Correct. correct. Nazmuddin, you want to say, you have any words on this? शायद भाई मुझे भी ये समझ में आया, लेकिन ये फैक्ट टेबल है ना, ये कौन करते हैं? Okay, कौन करते हैं? yeah, good question. So fact table ETL developers करते हैं. ETL developers डिजाइन करते हैं. या जो सब डिजाइन करने के बाद ETL systems सोर्स डेटा से कनेक्ट करके जो ट्रांसफॉर्मेशंस मैं बताया था ना, ऑल दोस ट्रांसफॉर्मेशंस करके फाइनली वो लोग ये मेक श्योर करते कि यूजर आईडी हम लोग जो सोर्स डेटा से पिक कर रहे, यूजर आईडी ऑफ डेटा वेयरहाउस में ही स्टोर होना. तो ऐसा वो लोग ETL डेवलपर्स करते हैं. ओके, शायद मैं समझ में आया. ओके, शेयर This माय स्क्रीन. meeting is being recorded. Okay, so now we design the fact table. Okay, so now let's see what is the definition of fact table. Okay, Kimball fact table definition. Okay, so here is the definition. So Ralph Kimball, he is the father of data warehousing and dimensional data modeling. So he is the one who came up with Ralph dimensional data modeling design for business intelligence. So यहाँ पर ये definition है, fact tables are foundation of data warehouse. ठीक है, डेटा वेयरहाउस का फाउंडेशन टेबल्स है. दे कंटेन द फंडामेंटल मेजरमेंट्स ऑफ एंटरप्राइज. मतलब पूरे एंटरप्राइज, या जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ई कॉमर्स का एग्जांपल ले रहे ना, तो ई कॉमर्स में जितने भी मेजरमेंट्स रहेंगे सब फैक्ट टेबल्स में हम लोग लगाते. जैसा कि एग्जांपल में आप लोग देखे ना कि हम लोग लिए थे सारे order IDs, I mean सारे primary keys of relational data source, and we put it into fact table. So वो सारे measurable values है ना, and also we took price, quantity. So all measurable values of an enterprise, we take it in the fact table. Okay, and they are the ultimate target of most data warehouse queries. Okay, there is no point in hosting fact tables up to flagpole unless they have been chosen to reflect urgent business priorities. These have been carefully quality assured and we are surrounded by dimensions. And one more thing, हम लोग यहाँ देखें कि fact table is surrounded by dimension tables. All these dimension tables that provide a wealth of entry points for constraining and grouping. Okay. ठीक है. So fact table में एक ग्रेन रहता. ग्रेन मतलब ए वैल्यू जिससे आप ज्वाइन कर सके. ओके, ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं. ग्रेन मतलब लोवेस्ट लेवल वैल्यू. फॉर एग्जांपल मैं आपको ई कॉमर्स स्कीमा में लिख जाऊंगा. सो अगर आपको ज्वाइन करना है यूजर आईडी टेबल और पेमेंट्स टेबल्स, ओके, कौन सा फील्ड आप यूज करेंगे ज्वाइन करने के लिए? यूजर्स टेबल और पेमेंट्स टेबल में कौन सा आईडी यूज करेंगे, कौन सा फील्ड नेम यूज होगा ज्वाइन करने के लिए टू टेबल्स? यूजर आईडी.
कौन सा? यूजर आईडी शायद भाई। यूजर आईडी, करेक्ट। सो ये वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ग्रेन इन टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। जो वैल्यू लोवेस्ट लेवल है, बिकॉज ये यूजर आईडी का नंबर है ना, ये नंबर दूसरे टेबल्स में कहीं और भी एंट्री किया गया, तो हम लोग उसको कनेक्ट कैसा करना? सेम वैल्यूज ज्वाइन करना। तो ये लोवेस्ट लेवल वैल्यू है। इसके नीचे और कुछ आ सकता क्या? इसके नीचे मतलब यूजर आईडी 1 है, तो हर एक यूजर का सेपरेट यूजर आईडीज है, उसके नीचे और कुछ नहीं है। तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर दिस होल टेबल यूजर आईडी, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेन। ठीक है, सो ये हो गया ग्रेन। नाउ ठीक है, सो डेटा वेयरहाउस में लोएस्ट पॉसिबल ग्रेन हम लोग बनाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये फैक्ट टेबल में हम लोग क्या लिए? ऑल द आईडीज लिए। सो ये आईडी वैल्यूज आप पूरे टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग डिम प्रोडक्ट बोल के अब डायमेंशन टेबल बनाएंगे। वो डायमेंशन टेबल में प्रोडक्ट आईडी है, तो आप ज्वाइन कर पा रहे हैं ना फैक्ट टेबल से? जी। सो दैट इज ग्रेन वैल्यू। तो वो यहाँ पर यही बता रहा है कि सो फैक्ट टेबल को हम लोग इस तरह बनाएंगे कि उसमें ग्रेन वैल्यूज रहना, जो वैल्यूज ज्वाइन करने वाले हैं डायमेंशन टेबल से, जो लोएस्ट लेवल वैल्यूज है वो रहना। सो हम लोग वो ऑलरेडी यहाँ पर डिजाइन कर दिए फैक्ट टेबल में। ठीक है, ओके, 3 काइंड्स ऑफ फैक्ट टेबल्स। ठीक है, फैक्ट टेबल्स 3 तरीके के रहते हैं। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन ग्रेन फैक्ट टेबल, एक ट्रांजैक्शन लेवल पे, एक पीरियोडिक स्नैपशॉट ग्रेन, और एक accumulating स्नैपशॉट फैक्ट टेबल। सो अभी हम लोग ये डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों को कुछ ज्यादा हो जाएगा। जस्ट विल फोकस ऑन फैक्ट टेबल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इतना ही है। तो मैं ये बता दूं कि ट्रांजैक्शन फैक्ट टेबल क्या है, 3 टाइप्स ऑफ। अगर आप लोग ओके बोल तो नहीं, नहीं तो वापस डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग पे जाएंगे। We can discuss further. क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही। सिंपल से एक बार डेफिनेशन से जाएंगे शायद भाई, जो डेफिनेशन से होता देंगे। ना डेफिनेशन। ओके, ठीक है, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। सो 3 टाइप्स ऑफ फैक्ट टेबल से हम लोग फैक्ट टेबल बना दिए। अब फैक्ट टेबल में अकॉर्डिंग टू किम्बल, लाइक फैक्ट टेबल में लोएस्ट लेवल ग्रेन रहना चाहिए, और फैक्ट टेबल में सारे एंटरप्राइज के मेजरेबल वैल्यूज रहना चाहिए, वो हम लोग ला लिए। अभी हम लोग बोल रहे कि फैक्ट टेबल 3 तरीके के, 3 टाइप्स ऑफ फैक्ट टेबल। ओके, अगर आपको दिख रहा है तो कोई एक जने पढ़िए, मैं उसको समझा देता हूँ। कोई वॉलंटियर करना चाहेंगे? मैं बोल Straight to the grain. ओके, बोलो All your fact table can be grouped into just 3 types: ओके, transaction grain, periodic snapshot grain, and accumulating snapshot grain. The 3 types are shown in figure 1. In figure 1, the dimension are designated by FK, foreign key, and the numeric facts are
articularized. italicized. ओके ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करें. The transaction grain corresponds to a measurement taken at single instant. The grocery store beep is a transaction grain. The Great. measured facts are valid only for the instant and for the event, for that event. The next measurement event could happen on 1 millisecond later, or next month, or never. Thus, transaction gain fact tables are unpredictably sparse or dense. Sparse or dense. Sparse or dense. We have no guarantee that all possible foreign keys will be represented. Transaction grain fact table can be enormous, with the largest containing many billions of records. Okay, we'll stop here. So ये बता रहे कि 3 टाइप्स ऑफ फैक्ट टेबल्स है. उसमें से फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन टेबल है, और ट्रांजैक्शन टेबल इज मेजरमेंट ऑफ ए सिंगल इंस्टेंट. फॉर एग्जांपल ले रहे के ये ग्रोसरी स्टोर का बीप, the grocery store beep is a transaction grain. That means every event that is recorded in the fact table is a transaction grain. अगर समझो हमारे फैक्ट टेबल पे हम लोग लोएस्ट लेवल डिटेल्स, सारे टेबल्स के आईडीज जो लोएस्ट लेवल डिटेल्स रिकॉर्ड कर रहे ना, ये ट्रांजैक्शनल ग्रेन है. अगर इससे भी लोएस्ट लेवल एक मिनट्स या सेकंड्स पे भी हो रहा कुछ इवेंट, अगर हम लोग वो भी रिकॉर्ड कर रहे तो ये हमारा फैक्ट टेबल बन जाता ट्रांजैक्शन फैक्ट टेबल. सो सब बिजनेसेस के रिक्वायरमेंट अलग रहती, सब बिजनेस टीम्स के रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट्स अलग रहती. किसी को ट्रांजैक्शन के लोएस्ट लेवल पे उनको फैक्ट टेबल रिकॉर्ड करना है, किसी को नहीं भाई हमको ट्रांजैक्शन लेवल पे नहीं करना है. सो दूसरा ऑप्शन क्या है? पीरियोडिक स्नैपशॉट. Periodic snapshot grain corresponds to predefined span of time, often a financial reporting period. Okay, figure 1 बता रहा है. Let's go to figure 1. Where is figure 1 here? यहाँ तो नहीं बता. ओके ठीक है, कोई बात. So periodic snapshot grain, like monthly account periodic snapshot. The measured facts summarize activity during at the end of the time span. The periodic snapshot grain carries a powerful guarantee that all of the reporting entities, such as bank account, will appear in each snapshot, even if there is no activity. The periodic snapshot is predictably dense, and applications can rely on combination of keys always being present. Periodic snapshot tables can get large. A bank with 200 million accounts and 10-year history would have 2.4 billion records in monthly account periodic snapshot. Okay. So periodic snapshot में बता रहे कि we are not concerned about each and every event. We are concerned about a time. For example, यहाँ पर हम लोग यूजर आईडीज ऑल दिस लेंगे ना. पीरियडिक स्नैपशॉट का उसका डिजाइन अलग रहेगा. लाइक फॉर एग्जांपल मंथ, कौन सा मंथ, कौन सा ईयर में ऑर्डर आइटम आईडी एंड क्वांटिटी प्राइस. सो यहाँ पर एक प्राइमरी की, सॉरी यहाँ पर एक की डिफाइन करते हैं. इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फील्ड्स एक की डिफाइन करते हैं ताकि ईच रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो. सो ये पीरियोडिक स्नैपशॉट है. यहाँ पर हम लोग डिटेल लेवल पे नहीं जा रहे,
ईच इवेंट लेवल पे नहीं जा रहे. ओके, सो नेक्स्ट है accumulating snapshot fact table. This corresponds to a predictable process that has a well-defined beginning and end, such as order processing, claim processing, service call resolution, college admissions, typical candidates. The grain of accumulating snapshot for order processing, for example, is usually the line item on the order. Notice figure 1 that there are multiple dates representing the standard scenario that an order undergoes. Accumulating snapshot records are revisited and overwritten as the process progresses through its steps from beginning to end. Accumulating snapshot fact tables generally are much smaller than the two types of this overwriting strategy. Okay. ओके, सो यहाँ पर accumulating snapshot फैक्ट टेबल के बारे में बता रहे कि इट करेस्पॉन्ड्स टू प्रेडिक्टेबल प्रोसेस के ये सिनेरियोज में यूज होता है कि ऑर्डर प्रोसेस का स्टार्ट और एंड हमको मालूम है, तो वो सिनेरियो में कैसा डिजाइन करना. ठीक है, सो लेट्स सी, हम लोग कुछ एग्जाम्पल मिल सकता है क्या, देखेंगे. ओके, ऑर्डर फुलफिलमेंट accumulating फैक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफाइन करा है कि ऑर्डर डेट, बैकलॉग डेट, रिलीज डेट, फिनिश डेट, रिक्वेस्ट. ओके ओके, ठीक है, बहुत सारे कीज यहाँ देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारे कीज डिफाइन कर. सो ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसा, ये जो एग्जांपल्स दिया ना यहाँ पर, ऑर्डर प्रोसेसिंग, क्लेम्स प्रोसेसिंग, सर्विस रेजोल्यूशन, ऐसे सिनेरियोज के लिए यूज होता. I think it is kind of like ticket based. हाँ जी, कुछ बोल रहे थे. Ticket based. टिकट, Ticket based होगा मे बी. हाँ, सर्विस कॉल रेजोल्यूशन, जिसमें स्टार्ट और एंड डेट डिफाइन है कि ये डेट को स्टार्ट होगा, एक्सपेक्टेड ये डेट को एंड होगा. खत्म. ऐसे सिनेरियोज के लिए इस तरह का फैक्ट टेबल डिजाइन करते हैं. सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जनरली ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स की वैल्यूज ही है, एंड रिमेनिंग वैल्यूज आर मेजर वैल्यूज, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट. ठीक है, सो इस तरह है. तो सिमिलरली अगर आप लोगों को मैं दूसरों का जैसा कि ट्रांजैक्शन का भी दिखा सकूं, एक एग्जांपल अगर अच्छा सा है ऑनलाइन तो. और ना, ये तो सही है. ठीक है, नहीं दिख रहा. ठीक है, अभी तो मोस्टली हम लोग सब कुछ कवर कर दिया ऑलमोस्ट. फैक्ट टेबल के प्रॉपर्टीज यह है कि इसमें ग्रेन वैल्यू रहेगा और एंटरप्राइज वाइड, एंटरप्राइज वाइड मेजरेबल वैल्यूज ये रहेंगे, और डिफरेंट सिनेरियोज के लिए डिफरेंट फैक्ट टेबल डिजाइन कर रहे हैं. ओके, ये हो गया. तो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम लोग डायमेंशन टेबल्स पे. ओके, आई विल कम बैक टू दिस डायग्राम वेयर वी स्टार्टेड. ओके,
सो ये जो बीच का जो बड़ा टेबल में उतारा ना, इसीलिए उतारा कि ये फैक्ट टेबल बहुत ही बड़ा रहता। अगर टेबल्स बहुत ज्यादा है हम लोग के सोर्स में, तो ये मतलब ऑलमोस्ट 50, 100, 150 फील्ड्स भी रह सकते हैं फैक्ट टेबल में। उतना बड़ा फैक्ट टेबल रहता और उसमें डेटा भी बहुत सारा रहता। नाउ कमिंग टू डायमेंशन टेबल। ओके, so dimension table, it gives more context or more meaning to the fact table. फैक्ट टेबल में हमारे पास तो आईडीज है, लेकिन आईडीज क्या है, जस्ट समझो। इन्हें आप फॉर एग्जांपल काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी कर लिया आप लोग यहाँ पर फैक्ट टेबल से। काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी, आपको एक वैल्यू आ गया 100। तो ठीक है, ये तो ओवरऑल प्रोडक्ट काउंट मालूम हो गया, लेकिन अगर आपको आप लोग चाह रहे कि इसको कॉन्टेक्स्ट देना, ये 100 ठीक है ओवरऑल काउंट है, लेकिन इसमें से ये प्रोडक्ट का कितना है, प्रोडक्ट बी का कितना है, प्रोडक्ट सी का कितना है काउंट, और ये पर्टिकुलर मंथ में कितना है, वो कॉन्टेक्स्ट कैसा देंगे हम लोग? थ्रू डायमेंशन टेबल्स। तो इसीलिए डायमेंशन टेबल्स डिफाइंड रहते। फॉर एग्जाम्पल ये डायमेंशन प्रोडक्ट्स टेबल देखिए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम, देन प्रोडक्ट का कैटेगरी आईडी, देन वेंडर आईडी, देन प्राइस। ओके, सो इन डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग में द बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग डीनॉर्मलाइजेशन फॉलो करते हैं। So we are not concerned about whether data is repeating or not, but it should have a unique record overall, a complete row. Data कितना भी repeat हो, लेकिन overall row in that particular table, data should be unique at the row level. तो ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डायमेंशन हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट सॉरी डायमेंशन यूजर्स हो गया। ठीक है, सो विल कंटिन्यू। सो डायमेंशन टेबल भी डिजाइन करने के डिफरेंट टाइप्स है। ओके, उसको बोलते हैं स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस। ठीक है, सो ये डायमेंशन स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस में इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एससीडीज। तो ये आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछते, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन में जीरो, सो इसमें एससीडी 0, एससीडी 1, एससीडी 2, एससीडी 3, 4 एंड 5, 6 तक रहता। देखा, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन 0 में क्या होता? फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल यूजर्स का एग्जांपल ले, यूजर टेबल्स ले लेंगे। एससीडी 0 में आईडी 1 है, जॉन डो, लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट नेम, फोन नंबर। सो फॉर एग्जांपल ये यूजर आईडी 1 का फोन नंबर चेंज हो गया। नाउ एससीडी 0 में क्या होगा? सेम टेबल नीचे कॉपी कर रहा हूं मैं। सो जस्ट यहाँ पर अपडेट होगा, वॉट एवर द चेंज एससीडी 0 में, मतलब अपडेट होगा, मतलब हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर रहे, नो हिस्ट्री। ये एससीडी 0 टेबल है, एससीडी 0 स्लोली चेंजिंग डायमेंशन टाइप 0।
वही फॉर एग्जाम्पल SCD1 में आ जाओ, एक काम करो, ये ओरिजिनल टेबल है, ओरिजिनल टेबल वही स्लोली चेंजिंग डायमेंशन 1, टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा, यहाँ पर हिस्ट्री मेंटेन करते हैं हम लोग, डेटा वेयरहाउस के ये डायमेंशन टेबल में हिस्ट्री मेंटेन करते हैं। कैसा हिस्ट्री मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक फ्लैग वैल्यू ऐड करिए, तो इसको क्या करूंगा मैं, ये फ्लैग वैल्यू को आई बोल दूंगा, दैट मीन्स दिस इज इनएक्टिव। सो ये सेम डेटा यहाँ पर मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, सो ये ओरिजिनल फोन नंबर इसका था, यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब ये न्यू फोन नंबर है, ये न्यू फोन नंबर पे फ्लैग वैल्यू एक्टिव, सो दैट मीन्स इसको भी एक्टिव दे देंगे क्योंकि ये भी फील्ड एक्टिव। सो नाउ डेटा वेयरहाउस में हिस्ट्री मेंटेन हो रही, लेकिन हम लोग ये बोल रहे कि ये जो रिकॉर्ड है ओल्ड वाला इनएक्टिव है, इसमें इश्यूज क्या होंगे तो फॉर एग्जांपल आपको रीजन पता करना है कि क्यों इनएक्टिव हुआ, कब इनएक्टिव हुआ, सॉरी कब इनएक्टिव हुआ, तो आप लोग कैसा पता करेंगे, मुश्किल होगी। तो वी हैव वन मोर slowly changing dimension type, we call it SCD2। SCD2 में क्या होगा, हिस्ट्री भी रहेगा along with dates, तो यहाँ फ्लैग वैल्यू भी रहेगा, यहाँ पर स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है। सो ये भी हमारे कॉलम्स ही है, कैसा मैं इसको क्या बता, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो SCD टाइप 2 है ये। टाइप 2 में क्या होगा, हिस्ट्री along with डेट्स मेंशन होगा। तो फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया था 01/01/2025 ना, उसका फोन नंबर चेंज हो गया 30th Jan, फॉर एग्जांपल 30th Jan 2025, तो हम लोग यहाँ पर एंड कर देंगे, ये एंड डेट इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ना, तो ये एंड डेट ऊपर का या एंड डेट यहाँ का स्टार्ट डेट बन जाएगा, फिर ये वैल्यू नल रहेगा, इट विल बी नल, दैट मीन्स ही इज स्टिल एक्टिव। सो प्रीवियसली हम लोग फ्लैग वैल्यू से आइडेंटिफाई कर रहे थे कि एक्टिव है इनएक्टिव है, तो इसमें इश्यू क्या था कि हम लोग ये ट्रैक नहीं कर पा रहे थे कि डेटा चेंजेस कब हुए क्योंकि डेटा रिपीटेशन से ना, तो चेंजेस कब हुए वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग क्या है, न्यू वैल्यू ऐड करें, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। नो, हम लोग ट्रैक भी कर पा रहे हैं, और वो उसका फ्लैग एक्टिव है इनएक्टिव है वो भी हम लोग मेंटेन रख रहे हैं। तो इससे हमको ये एडवांटेज होगा कि करंट वैल्यू क्या है, करंट एक्टिव एक्टिव रिकॉर्ड क्या है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ में हिस्ट्री भी मालूम कर सकते हैं। सो व्हेन कम्स टू दिस, इसका कुछ चेंजेस नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल इसका भी डेटा इंसर्ट हुआ था 1/1, चेंजेस कुछ नहीं है, तो नल हाँ, ऐसा रहेगा। correct. तो ये SCD टाइप 2 है। नाउ SCD टाइप 3, SCD टाइप 3 का एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा, टाइप 3 एग्जाम्पल, यूजर्स का एग्जाम्पल है, यूजर्स टेबल। ओके, हाँ डेफिनेशन है।
SCD type 3, the change in value is added as a new column. हाँ, new column in the same record of the dimension table. The new column for the current value is added alongside the original column. Okay. So mostly SCD type 2 ही यूज करेंगे. Generally कुछ सिनेरियोज में SCD टाइप 3 भी यूज करते हैं. सो SCD टाइप 3 में क्या करते हैं हम लोग, इसके बारे में कंसर्न नहीं है समझो. यहाँ पर क्या रहेगा, ये भी फ्लैग वैल्यू भी नहीं है, ओल्ड वैल्यू. ये ये दो ये दो फील्ड्स रहते, न्यू वैल्यू. ओके. सो एक एग्जाम्पल टेबल लेवल पे अगर मिला तो अच्छा रहेगा. Let me check this. SCD type 3 target table नहीं ये एग्जाम्पल. हाँ, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट, फर्स्ट नेम प्री, फर्स्ट नेम ओल्ड, फर्स्ट नेम करंट, लास्ट नेम इफेक्टिव डेट. सो एससीडी टाइप 3 में क्या हो रहा. ओके, प्रीवियस वैल्यू ये था. ओके ओके. सो एससीडी टाइप 3 में जो है ना, हम लोग एक स्पेसिफिक फील्ड पे कॉन्सेंट्रेट करते. फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रैक करना है फोन नंबर. फोन नंबर चेंजेस, फोन नंबर ओल्ड, फोन नंबर न्यू. बस एक फील्ड पे ही मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, उसके चेंजेस के ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ. यहाँ पर एससीडी टाइप 2 जो जनरली बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, एससीडी टाइप 2 ही ज़्यादा यूज होता है. सो यहाँ पर हम लोग हर एक रिकॉर्ड लेवल पे हिस्ट्री देख रहे. तो यहाँ पर एससीडी टाइप 3 में ओनली एक पर्टिकुलर फील्ड लेवल, वो फील्ड में क्या चेंजेस हुआ वही देख रहे. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओल्ड फोन नंबर कुछ नहीं था, न्यू यहाँ पर ऐड हुआ, मतलब समझो फॉर एग्जांपल इंसर्ट के टाइम पे ये था. अभी इसका न्यू या करंट बोल सकते हैं, जिसको न्यू के बजाय करंट गिव्स मोर मीनिंग, करंट. तो यहाँ पर देखो, इस ये थर्ड रो में फोन नंबर चेंज हुआ ना, तो ये ओल्ड वैल्यू क्या था, ये था इसका. अभी न्यू वैल्यू क्या है, ये है. और इसका साथ में डेट भी रहेगा, इफेक्टिव डेट. तो कब से ये चेंज कब से हुआ, तो ये चेंज कब से हुआ, ये वैल्यू. अगर चेंज नहीं हुआ तो नल है. तो इस तरह एससीडी टाइप. तो 4, 5, 6 वो और भी है, तो इतना काफी है अपन के लिए. सो हम लोग टोटल ओवरऑल देखे हैं डायमेंशन टेबल्स. सो लेट मी कम बैक टू द डायग्राम. ठीक है. सो नाउ ETL टूल्स, सोर्स को कनेक्ट करके मल्टीपल ETL. यहाँ पर जो भी आप लोग बॉक्सेस देख रहे हैं ना, हर एक बॉक्स के लिए एक ETL वर्कफ्लो रहेगा. फैक्ट टेबल डिजाइन करने के लिए एक वर्कफ्लो, ये डायमेंशनल टेबल यूजर्स डिफाइन करने के लिए एक वर्कफ्लो, प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए एक वर्कफ्लो. सो ETL में हर एक वर्कफ्लो, और ये वर्कफ्लो हम लोग स्केड्यूल कर देते, ETL सर्वर पे स्केड्यूल कर देते, और वो टाइम डिफाइन कर दे, डेली रन होना. ओके. और और एक सिनेरियोज है ETL में मैं जो मिस कर दिया हूँ. ETL में हम लोग डेटा लोड करना बोल रहे हैं ना. सो डेटा लोडिंग सिनेरियोज क्या है, यहाँ पर ले लो. एक तो फुल डेटा लोड, मतलब एवरीडे सोर्स में से पिक करना हमारा
डेटा वेयर हाउस में ट्रंकेट कर देना, एग्जिस्टिंग डेटा जो भी है ट्रंकेट कर देना, फिर रीलोड करना। ये एक सिनेरियो है डेटा लोडिंग। ईटीएल ईटीएल के जो है डेटा लोडिंग सिनेरियोस है ना, उसमें से उसमें से ये एक है जिसको बोलते हैं फुल लोड, और एक है इंक्रीमेंटल लोड। सो ये टर्म्स है, ये टर्म्स आपको याद रखना है, इसको समझना भी है। इंक्रीमेंटल लोड मतलब डेली अपेंड कर रहे डेटा। सो फॉर एग्जांपल मेरे को मेरा डेटा वेयर हाउस में कल तक का डेटा स्टोर है, कल तक ना, फॉर एग्जांपल 38 थर्सडे तक का डेटा स्टोर है। आज सैटरडे है, तो मैं आज पूरा फ्राइडे का डेटा लेकर के डेटा वेयर हाउस में लोड कर रहा हूँ। तो ये क्या है, इंक्रीमेंटल लोड। ठीक है, ये एक फुल लोड मतलब टारगेट में से पूरा डिलीट करके फिर से डेली रीलोड करते जा रहे। और वो कब करते हैं, डेटा स्मॉल है, जैसा कि यूजर्स का डेटा है, कितने रहेंगे, मैक्सिमम 50,000 1 लाख, so ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेली फुल लोड करते हैं। इंक्रीमेंटल लोड कब करते हैं, व्हेन वी हैव ए ह्यूज डेटा इन द सोर्स एंड पूरा एक साथ हम लोग नहीं उठा सकते, तो हम लोग क्या करना, डेली लोड करते रहना, इंक्रीमेंटल बोलते हैं इसको। 1 डे डेटा लिए, सो 1 डे का ऑलमोस्ट कितने रिकॉर्ड्स आ सकते हैं आप लोगों को, ऑलमोस्ट लाइक 10 lakhs में भी, और 20 lakhs, और कम से कम बोले तो थाउजेंड्स में आ सकते हैं। तो ये अपेंड करते जा रहे हैं डेटा वेयर हाउस में। ठीक है, थर्ड है अपसर्ट। अपसर्ट या मर्ज भी बोलते हैं, मर्ज। तो ये सिनेरियोस कब यूज होता बोले तो, आपको सोर्स में न्यू डेटा तो आ रहा, लेकिन एग्जिस्टिंग डेटा में अपडेट्स भी हो रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं सोर्स रिलेशनल डेटा मॉडल फाइल में जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल शिपिंग, इट्स ए शिपिंग डेटा, ये तो एडेड है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये अपडेट भी कर रहे हैं कभी कभी, या फिर रिव्यूज कोई अपडेट भी कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियोस में चेंज डेटा, जो एग्जिस्टिंग जो चेंजेस है वो भी मुझे लाना है। तो ऐसे सिनेरियोस में हम लोग क्या करते हैं, इसको अपसर्ट या मर्ज बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इंसर्ट इफ न्यू रिकॉर्ड्स अराइव्ड, अगर न्यू रिकॉर्ड्स आए तो डेटा वेयर हाउस में इंसर्ट कर दो। अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में चेंजेस है, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, देन अपडेट। सो डेटा वेयर हाउस में अपडेट्स भी करते हैं हम लोग ये सिनेरियोस में, इसको बोलते हैं अपसर्ट एंड मर्ज। सो ये टर्म्स आपको याद रखना है, इसको समझना है, ईटीएल सिस्टम में बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये पूरा ईटीएल सिस्टम इस पे ही बेस्ड है, फुल इंक्रीमेंटल अपसर्ट। सो एक तो एक्सट्रैक्ट कर रहे, फिर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशंस जो बिजनेस लॉजिक अप्लाई कर रहे, तीसरा लोड। तो ये सब जितना भी पूरा ईटीएल सिस्टम है ना, इसके अंदर ही मर्ज्ड है पूरा। ओके, तो लेट्स कम बैक टू द डायग्राम। हम लोग ईटीएल सिस्टम देख लिए, डेटा वेयरहाउसिंग डायमेंशनल मॉडल देख लिए। डायमेंशनल मॉडल में एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन रहा, फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल्स का। सो इसको बोलते हैं स्टार स्कीमा। ये याद रखना आप लोग, इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगर पूछे कि व्हाट इज स्टार स्कीमा, तो आप लोग बोल सकना। तो इसे डायमेंशनल डेटा मॉडल वेयर फैक्ट टेबल इज इन द सेंटर एंड डायमेंशन टेबल कनेक्ट्स अक्रॉस टू all dimension tables connect to the fact table, all the dimension tables connect to the fact। so ये स्टार स्कीमा बोलते हैं इसको टर्मिनोलॉजी में, एंड इसको डायमेंशन टेबल्स बोलते हैं, फैक्ट टेबल बोलते हैं। ओके, सो आई एम डन। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है तो वन बाय वन, कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, कहीं स्टक है, या कुछ क्लैरिटी नहीं है, जस्ट आप क्वेश्चंस पूछो, आई विल ट्राई टू आंसर। So, Shad bhai, I have one doubt. Like,
So we were Okay. preparing SDC, those tables, SCD. SCD. Okay. So that is interlinked to dimensional database. Yeah, dimension. Specifically, I'll come back to this diagram. Those SCDs will come here to all these connecting tables जो है ना dimension tables, ये tables में आता. So हम उसको कैसा डिजाइन करना, SCD 0 रखना, 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, ये पूरे जो कनेक्टिंग टेबल्स है ना उसको उसके ऊपर फिट होता है. So based on the fact table, we will design SCDs. नो This एग्जाम्पल आपको meeting कुछ is being प्रोजेक्ट असाइन recorded. कर दिए, आप इंडिविजुअली उस पे काम कर ले सकते हैं, ये सब चीजें मालूम रहने से. शायद मैं तो तो हैंड्स ऑन. अभी तक हाँ बोलिए. जो तुम्हें वो व्हाट्सएप में रोड मैप भेजे थे, हाँ तो सारे से सारा सिस्टम डिजाइन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस बगैर काम के सब भी हो गया ना, डिजाइन ऑफ ईटीएल डिजाइनिंग डायमेंशन डेटा मॉडल ये सब हो गया सगत ना. हाँ, सो और ये हो गया. और एक बाकी है बिजनेस इंटेलिजेंस का. अभी देखो वही. मैं लास्ट टाइम आपको ये बताया था ना, लास्ट टाइम आपको मैं डायग्राम में सिर्फ ये और ये बताया था. ओके, इस बार मैं आपको डायग्राम में ये भी ऐड करा, ईटीएल सिस्टम. नेक्स्ट आपको डायग्राम ये ओवरऑल डेटा इकोसिस्टम के डायग्राम में और एक ऐड करूंगा, वो बीआई सिस्टम है. ओके. सो ये कैसा कनेक्टेड है ये सब. जैसा आप फिरदौस फिरदौस पूछे थे कि मतलब वेबसाइट से जो डेटा आ रहा है क्या डेटाबेस में ही स्टोर हो रहा. ओलैप डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस का डेटा क्या डेटाबेस में ही स्टोर हो रहा. सो डेटाबेस में ही स्टोर हो रहा, लेकिन ये लोग अलग अलग सिस्टम्स अलग अलग सर्वर पे है, ये लोगों का सिस्टम सेपरेट है, एक ही नहीं है. डेटाबेस ही है लेकिन सिस्टम्स सेपरेट है. तो हैंड्स ऑन के लिए भाई, हम लोग ऑल्ट्रिक्स यूज करेंगे. हाँ यूसुफ कुछ बोल रहे थे. जी तो for our like future references, can we get these videos as well, like the recorded videos? हाँ हाँ, मैं रिकॉर्ड करके मैं मैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ जी, जनरली. लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली अगर वीडियोस रिकॉर्डेड है बोल तो हमारा माइंड कैसा होता, रिकॉर्डिंग मिल खराब हो जाती गया ना था. आप बोले ऐसा, हम्म. रिलैक्स माइंड हो जाता. इसीलिए नहीं मैं नहीं आप नहीं, लोगों को रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ. मतलब आप लोगों का पार्टिसिपेशन एक्टिव रहना बोल के नहीं, ये मैं तो भिजाऊंगा, कंटिन्यूस रहेगा. मैं भिजाता हूँ. So that we will make notes in future. नहीं मतलब आप ओके ठीक है, भिजा. जी मैं सेंड करता हूँ आपको, लिंक सेंड करता जी. हूँ. think that ओके, सब क्लियर है ना, और कुछ क्वेश्चंस जी. कुछ भी नहीं शायद. क्लियर है ना. ठीक है. एंड लाइक आज शायद भाई, वो हाँ आप डायमेंशनल टेबल के लिए यू हैव यूज वन स्प्रेडशीट. हाँ, उसका एक्चुअल यूज अभी नहीं हुआ आज आज के सेशन में. क्या बोल रहे हैं एक्चुअल. यूज उसका टेबल का यूज नहीं हुआ आज. आई थॉट लाइक विल मेक सम डेटा आउट ऑफ इट. हाँ एक्सेल ये शीट तो खैर एक्सेल शीट. ओके, यूज नहीं हुआ मतलब फॉर ओके मैं ओपन कर रहा हूँ. लाइक यू हैड सम एग्जांपल्स देयर. मतलब आप अभी अभी यूज नहीं करे बोल रहे हैं या फिर
मैं आपको यूज करके नहीं 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 बताया। नहीं नहीं नहीं, अपन यूज नहीं करे, मे बी इन फ्यूचर वी विल यूज दोस, नॉट दिस वन, हाँ, लाइक द ये अदर तो वन, ये दूसरा तो वाला। जस्ट कॉन्सेप्ट्स है। जी जी। ये आपको मतलब समझ के आपको बैक ऑफ द माइंड रखना है। तो जी जनरली आप जब भी डैशबोर्डिंग या फिर कुछ डैशबोर्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो जनरली ये देखना है कि इसमें हिस्टोरिकल डेटा है या नहीं है। तो नहीं, द आपको अदर वन, हम्म, डायमेंशनल डेटा वाला। कौन से ये वाला, ये वाला। हाँ, ऐसा कुछ और टेबल्स स्प्रेडशीट्स थे। हाँ, अभी अभी तो मैं ओनली दो ही ऐड करा। जी जी। जस्ट हमको एक एग्जाम्पल देखना था ना, तो जस्ट अच्छा अच्छा। ओनली टू ही ऐड करा बस। और भी आएंगे टेबल्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ना, कि जी। बहुत सारे फैक्ट टेबल्स है। सो यहाँ पर जितने भी जनरली इसको कैसे कैटेगराइज कर रहे बोल तो, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डायमेंशन, यूजर से यूजर डायमेंशन। देन हम्म, ये इसका आइडिया हमको आता सोर्स सिस्टम से ही। जैसे सोर्स फाइल जो है ना, ई कॉमर्स फाइल, कैटेगरीज, देन कैटेगरीज डायमेंशन, वेंडर्स, हम्म। अगर वेंडर्स तो वेंडर्स डायमेंशन, ऐसा। तो यहाँ से ही आइडिया आता कि डायमेंशंस क्या बनाना। ठीक है, ठीक है, समझ लिया। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, सो ओवरऑल आज हम लोग देखे डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग, और हम लोग हैंड्स ऑन के लिए ऑल्ट्रिक्स टूल यूज करेंगे, और डेटाबेस एज ए सीक्वल सर्वर यूज करेंगे, और टैबल्यू डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, ठीक है, चलो फिर वाइंड अप कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट, कल मिलेंगे फिर। अगर इनके इस कल कल नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक मिलेंगे। मैं मैसेज करता कल। हूँ ग्रुप में। ओके सर। ठीक है ना? ओके, ठीक है सर। चलिए, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। बस।